going to study general knowledge in the two chapters. Two chapters of general knowledge, and the first chapter is how animal adapt. How animal adapt means animals जो हैं खुद की adaptation, मतलब उनका जो रहने का तरीका है वो खुद को कैसे रखते हैं. The second chapter is mythical creatures. Mythical creatures means mythical मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो myth हो, ठीक है. That is dreamy, जो जिसको हम लोग केवल ड्रीम्स में देखते हो, मतलब वो रियल में ना हो. So let's get into the chapter. First of all we will study the chapter how animals adapt. So question क्या है? Can you identify these animals? Fill in the blocks with the correct answers. So first question क्या है? This member of the dog family can change its color. Its fur is white or grey-blue during the winter and grey-brown or grey during the summer, helping it camouflage. Its long, bushy tails, also called a sweep, helps it to maintain its balance and keeps its feet and nose warm when it curls up to sleep. ये क्या कह रहा है यहाँ पे? दिस मेंबर ऑफ डॉग फैमिली, जो भी एनिमल है ये डॉग फैमिली से बिलोंग करता है. एंड इट कैन चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर चेंज कर सकता है. इट इज़ अ फरी एनिमल्स जो विंटर में ग्रे और ब्लूइश कलर में हो जाता है और समर के टाइम ग्रे, ब्राउन और ग्रे कलर में हो जाता है, जो इसको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है. कैमोफ्लेज मीन्स क्या होता है? सो कैमोफ्लेज मीन्स होता है द वे in which an animal's color or shape matches its surrounding and it make it difficult to be spotted. So ऐसा animals को ऐसा way, मतलब animals अपने color को और shape को change कर सकते हैं अपनी surrounding के basis पे, ताकि उनको पहचानने में दिक्कत ना हो. So what will be the animal? That is Arctic fox. Now the second is found in the rivers of eastern, central and parts of southern Africa. This animal is regarded as one of the most ferocious animal in the continent. It secretes an oily substance from its skin, popularly known as blood sweat, which acts as a natural sunscreen and protect it from sunburn. This secretion, however, is neither blood nor sweat. It acts as a moisturizer and protects against germs. क्या है इसका मतलब? फाउंड इन द रिवर्स ऑफ ईस्टर्न, सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका. ये जो एनिमल है वो ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका के पार्ट्स में पाए जाते हैं. एंड दिस एनिमल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस एनिमल इन द कॉन्टिनेंट. सो इसकी बॉडी से इट सिक्रीट्स एन ऑयली सब्सटेंस, ये अपनी बॉडी से ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करता है, जो कि एक मॉइस्चराइजर का काम करती है और इसे सनबर्न से बचाती है. सो दैट एनिमल विल बी हिप्पोपोटामस. नाउ द थर्ड विल. These frogs range from less than 1 inch to around 2.5 inches in body length. They all vary in their colors and patterns. The beautiful coloring on their bodies are warnings to predators that they are poisonous. In certain cases, their patterns also help them camouflage. So क्या है यहाँ पे? These frogs, so frogs पहले पता चल रहा है ये काइंड ऑफ अ फ्रॉग है. फ्रॉग की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं. So these frogs range from less than 1 inch to around 2.5 inches in body length. Normally 1 or 2 half inch के होते हैं ये. They all vary in their colors and patterns, और इनके colors और patterns different होते हैं. The beautiful coloring on their bodies, इनके body different colors की patterns बने होते हैं, beautiful colors होते हैं, जो कि warning होती है उनके predators के लिए, मतलब जो उनके prey होते हैं, उनके जो शिकार होते हैं उनके लिए warning होती है कि ये poisonous है. कुछ केसेस में इनका जो पैटर्न है, इनके ऊपर जो स्पॉट्स बने होते हैं वो इनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो आंसर विल बी पॉइजन डार्ट फ्रॉग. नाउ द फोर्थ. दिस लिजर्ड हैज अ स्किन flap which looks like a frill encircling its neck, which it can raise suddenly when threatened to surprise its enemy. This can make its head look several times its normal size. क्या है? दिस इज लिजर्ड. सो यहाँ पे लिजर्ड की बात हो रही है. डिफरेंट काइंड्स की वेराइटीज ऑफ लिजर्ड होती हैं. सो ये लिजर्ड क्या है? दिस लिजर्ड हैज अ स्किन फ्लैप विच लुक्स लाइक अ फ्रिल एनसर्कलिंग इट्स नेक. इनके फ्रिल्स होते हैं, इनके फ्लैप्स होते हैं स्किन पे, जो कि फ्रिल्स की तरह लगते हैं इनके नेक पे. विच कैन रेज सडनली व्हेन थ्रेटन टू सरप्राइज इट एनिमी. उनका जब एनिमी है, मतलब जो उनका प्रे होता है, उसको सरप्राइज करने के लिए इनका जो फ्रिल है वो फ्लैप हो जाता है, स्किन जो इनकी फैल जाती है. दिस कैन मेक इट्स हेड लुक सेवरल टाइम इट्स नॉर्मल साइज.
और इससे क्या होता है, इनके हेड जो है वो नॉर्मल साइज की तरह कभी कभी लगने लगते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, फ्रिल लिजर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड चैप्टर इज मिथिकल क्रीचर्स। सो मिथिकल क्रीचर्स होते क्या है, दीज एनिमल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट दे आर ऑफन द मोस्ट टेरेबल एनिमी और powerful ally in the fantastical world of myths and fairy tales. Can you name these mythical characters? Choose your answer from the help box given below. क्या कह रहा है यहाँ पे, mythical creatures ऐसे creatures होते हैं जो animals हैं ये, जो कि reality में exist नहीं करते, but they are often the most terrible enemy और powerful ally in the fantastical world. हम लोगों ने बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी हैं, myths सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, सो उसमें ये सब क्रीचर्स आते हैं, ठीक है। वो अगर उन फेरी टेल्स में देखा जाए या मिथ्स सुने जाएं तो उनके बारे में ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा टेरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम अ माइथोलॉजिकल क्रीचर विद अ लॉयंस बॉडी एंड अ ह्यूमन्स हेड। आई आस्क मेन रिडल्स एंड ईट देम इफ दे डोंट आंसर करेक्टली। क्या कह रहा है, आई एम मैथोलॉजिकल क्रीचर, मैं एक मैथोलॉजिकल क्रीचर हूँ जिसकी बॉडी जो है लॉयन बॉडी है, मतलब लॉयन की बॉडी है और ह्यूमन का हेड है, ठीक है। आई आस्क मेन्स रिडल्स, ये रिडल्स मतलब पहेलियाँ पूछता है और अगर वो आंसर नहीं दे पाते हैं ह्यूमन तो वो उन्हें मार डालते हैं, ठीक है, वो उन्हें खा जाते हैं। सो आंसर विल बी स्फिनिक्स। नाउ सेकेंड इज, आई हैव अ हेड made of snakes and the ability to turn people to stone if they look into my eyes. यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा हेड जो है स्नेक का है, ठीक है, और मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं लोगों को पत्थर बना सकता हूँ अगर वो मेरी आंखों में देख ले तो। सो आंसर विल बी मेड्यूसा। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें बताता होगा कि अगर इस तरह के क्रीचर्स हैं, कोई चीज़ें हैं कि ये इसे मार देता है, ठीक है। हर मूवी में भी देखते होंगे आप विलन, एज अ विलन देख सकते हैं, तो ये एज अ क्रीचर्स हैं फेरी टेल्स के, ठीक है। नाउ द थर्ड इज, आई एम पार्ट लॉयन, पार्ट गोट, पार्ट ड्रैगन एंड आई कैन ब्रीथ फायर। यहाँ पे कह रहा है मैं कुछ तरीके से लॉयन हूँ, गोट हूँ, कुछ तरीके से ड्रैगन, और मैं फायर को ब्रीथ मतलब आई कैन ब्रीथ फायर, मतलब उनके मुंह से फायर निकल सकती है। तो आंसर क्या होगा, काइमेरा। नाउ द फोर्थ इज, in Roman legend, I am a creature who can destroy anything with just one look. I came from an egg laid by a cock and hatched by a serpent. So क्या कह रहा है, रोमन लीजेंड में बताया गया है कि एक ऐसा क्रीचर है जो कि किसी भी चीज़ को एक बार देखते ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कॉक के एग से पैदा हुआ है और हैच किसे किया है, एक किसी सर्पेंट ने इसे हैच किया है। सो आंसर विल बी बेसिलिस्क। Now, fifth is, I have a lion's body and a bird's head, and I protect people from danger. My legend originated in Mediterranean more than 4,000 years ago. यहाँ पे कह रहा है कि मेरी बॉडी जो है लॉयन की बॉडी है और उनका जो हेड है हेड बर्ड का है, एंड आई प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डेंजर, लोगों को क्या करता है वो डेंजर मीन्स खतरे से बचाता है। माई लीजेंड ऑरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन मोर दैन 4,000 ईयर्स अगो, उनके लीजेंड जो है वो मेडिटेरेनियन में 4,000 ईयर्स अगो पहले ऑरिजिनेट हुए थे। सो आंसर विल बी ग्रिफिन। नाउ द सिक्स्थ विल बी, सो I am half bird and half woman who in popular folklore lures sailors to their deaths by her sweet song. यहाँ पे क्या कह रहा है, I am a half bird and a half woman, मैं आधी women और आधी bird हूँ। Who in popular folklore, जो कि फोक्स में स्टोरीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, lures sailors to their death by her sweet song। और जो सेलर्स होते हैं जो समुद्र वगैरह में सेलिंग करते हैं, जो वो मछुआरे वगैरह कह सकते हैं आप लोग, तो वो उनको जो है उनको सेलर्स टू लेट देयर डेथ बाय हर स्वीट सॉन्ग्स, वो लोगों को अपने गाने सुनाकर मार सकती। तो आंसर क्या होगा, सिरेन। नाउ सेवेंथ इज, माई नेम इन ग्रीक मीन्स राउंड आईज, आई हैव ओनली वन आई दैट इज इन द मिडल ऑफ माई फोरहेड, आई एन्जॉय ईटिंग ह्यूमन फ्लैश। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रीक में इनके नाम का मतलब है राउंड आई। सो वो क्या करते हैं, उनकी केवल एक आंखें हैं, ही हैज़ ओनली वन आईज दैट इज इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, वो उनके फोरहेड के बीच में है
और वो उनको जो है फ्लैश खाना, ह्यूमन फ्लैश खाना बहुत अच्छा लगता है. सो द आंसर विल बी साइक्लॉप्स. 8th is I am a giant monster that looks much like a water snake with multiple heads. If one of my head is cut off, 2 of them grow back in its place. Hercules defeated me and buried me under a pile of rocks. क्या है? I am a giant monster. मैं बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर हूँ जो कि किसकी तरह दिखता है? That looks like a water snake. वाटर स्नेक जो होते हैं वो उनकी तरह दिखता है जिनके बहुत सारे हेड हैं. अगर उनका कोई भी एक सर कट जाता है तो फिर से 2 और उगाते हैं. और क्या है? हर्क्यूल्स जो है उन्होंने उन्हें हराया था, डिफीट किया था और उन्हें कहाँ पे बरी कर दिया था? बरीड में अंडर अ पाइल ऑफ रॉक्स के पत्थरों के बीच में उनको बरी कर दिया था, गाड़ दिया था. सो आंसर विल बी हाइड्रा. नाउ द 9th one is I am a magical horse. My most striking feature is the single spirally grooved horn on my forehead, which symbolizes good luck. In stories, I am a fierce yet good, selfless but solitary. I am beautiful and mysterious too. यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक मैजिकल हॉर्स हूँ एंड माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज ए सिंगल स्पायरली ग्रूव्ड हॉर्न. जो उनके जो हेड है उनके हेड पे एक हॉर्न निकला हुआ है बीच में, जो कि बहुत ही मतलब स्ट्राइकिंग फीचर है उनका. ठीक है. विच सिम्बलाइजेज गुड लक, जो गुड लक का प्रतीक है. इन स्टोरीज आई एम फ्योर्स येट गुड. स्टोरीज में इसे गुड मतलब गुड लक के तरीके से माना जाता है. सेल्फलेस माना जाता है, बस सॉलिटरी है वो. आई एम ब्यूटिफुल एंड मिस्टीरियस टू. मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मिस्टीरियस भी है. ठीक है. सो आंसर विल बी यूनिकॉर्न. यू हैव सीन दैट यूनिकॉर्न. आप लोगों ने आजकल इस समय यूनिकॉर्न की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग यूनिकॉर्न को बहुत अच्छे से जानते होंगे. नाउ the 10th is a monster in Greek mythology. I have the head of a bull and the body of a man. यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रीक की माइथोलॉजी में मैं एक मॉन्स्टर हूँ. I have a head of a bull. मेरा हेड जो है वो किसी बुल का है और बॉडी जो है मैन की है. सो आंसर विल माइनोटॉर. सो नाउ 11th is my beauty is legendary. I am a fish maiden with long flowing hair and incredible power. According to legends, I sing to people and gods to enchant and distract them and lure humans down to the underwater kingdoms. यहाँ पे क्या कह रहा है? My beauty is legendary. मेरी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा लीजेंडरी है, मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है जो भी है ये. आई एम अ फिश मेडन, मतलब ये फिश काइंड ऑफ अ फिश है जिसके लंबे और बहुत ही लंबे बाल हैं, फ्लोइंग हेयर्स हैं और जिसके पास ही बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं. अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स आई सिंग टू पीपल. मतलब मिथ्स के अकॉर्डिंग, लीजेंड्स के अकॉर्डिंग जो है ये क्या करती है? ये लोगों को गाना गा के सुनाती है. एंड गॉड्स टू इंचैंट, मतलब सुनाती है गाना. एंड डिस्ट्रैक्ट देम, और उनको उनके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देती है. और ह्यूमंस को उसके बाद जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ह्यूमंस को अंडर वाटर किंगडम में अपने ले जाती हैं. सो आंसर विल बी मर्मेड. नाउ द 12th इज I am a beautiful winged horse and the son of Poseidon. I appear in myths from all over the world and have been the subject of many paintings. A constellation has been made after me. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विंग्ड हॉर्स हूँ, कोई ऐसा हॉर्स जिसके पंख हों और वो पोसीडॉन के बेटे हैं. I appears in myths फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो उनको मिथ्स में ही देखा जाता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो ये सब ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके बारे में आपको बता रही. ये ऐसे क्रीचर्स हैं जो केवल मिथ्स में हैं, रियलिटी में नहीं है. दे मे बी विलन, ये विलन भी हो सकते हैं, मीन्स बैड काइंड ऑफ क्रीचर भी हो सकते हैं और गुड काइंड ऑफ क्रीचर भी हो सकते हैं. ठीक है. बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो विल बिगिन. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिथ्स में इन्हें बहुत ज़्यादा मिथ्स में देखा गया है, बहुत ज़्यादा स्टोरीज वगैरह में इन्हें सुना गया है. एंड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी पेंटिंग्स, और बहुत सारी पेंटिंग्स में इन्हें सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है. अ कॉन्स्टलेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर मी, उनके नाम पर कॉन्स्टलेशन भी बना है. सो द आंसर विल बी पिगैसस. 13 इज आई एम अ फैबुलस बर्ड. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियन लीजेंड्स आई एम कंज्यूम्ड बाय फायर एवरी 500 years. But I rise again from my own ashes. You can also find stories about me in Greek mythology. यहाँ पे क्या है कि एक fabulous bird है.
अकॉर्डिंग टू एंशियंट इजिप्शियन लीजेंड्स, एंशियंट जो इजिप्शियंस हैं उनके हिसाब से आई एम कंज्यूम्ड बाय फायर, मतलब आग ने उन्हें 500 साल पहले अपने अंदर ले लिया था। बट कहा यह जाता है कि बट आई राइज अगेन फ्रॉम माई ओन एशेज, वो अपनी ही राख से वापस से पैदा हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड स्टोरीज अबाउट मी, आप इनके बारे में स्टोरीज भी ग्रीक माइथोलॉजीज में पढ़ सकते हैं। सो द आंसर विल बी फिनिक्स। नाउ द 14 इज आई एम अ पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट हॉर्स, आई एम वाइल्ड untamed and I represent the dark and unruly forces of nature। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं आधा ह्यूमन बीइंग और आधा हॉर्स हूँ। ये वाइल्ड है, जो है अनटेम्ड नेचर के जो फोर्स है उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं। सो द आंसर इज सेंटोर। नाउ 15th इज दो ह्यूमन एवरी फुल मून नाइट आई टर्न इनटू अ हाउलिंग वुल्फ एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड सेंसेस। ह्यूमन की तरह हर पूर्णिमा की रात में, हर जब फिर पूर्णिमा की रात रहती है, मतलब जब फुल मून रहता है, आई टर्न इनटू अ हाउलिंग वुल्फ, ये वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं विद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, मतलब ऐसे ह्यूमन के रूप में जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और सेंस भी हो। सो द आंसर इज वेयर वुल्फ। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी द अदर चैप्टर। ओके, थैंक यू।